Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time only on Kanshi TV Sky channel 772, broadcasting to over 180 countries. Yes, of course 180 countries are watching this program live wherever you are around the globe, and not to also mention the repeat program every Friday 2 p.m. Yes, so for whatever reason, if you've missed this program, not to worry, you can catch us on Facebook, YouTube channel, Kanshi TV's social media channels, and you can see this report 2 p.m. on Friday. So there is no reason for you to miss this program. And as always, as you know very well, I have a very special guest here in the studio with me, and no doubt I have a very special guest. But just before I introduce you to my very respectable guest, very respectable friend and respectable brother who I've known for many years, who's been in this industry, particular when it comes to radio broadcasting and presenting and journalism and so on, particularly when it comes to writing books and so on. So he's got massive experience when it comes into journalism and so on. But just before I do that, as you're very well aware, Your Britain, where we discuss issues affecting and reflecting all our communities here in the UK and right across the globe. That is the whole purpose of this beautiful platform that we have on Kanshi TV, where we have from social welfare, charitable, community issues, and many other issues which are really affecting us here in the UK. So, and for that reason, we're going to be talking about something which has affected my friend, our guest, personally. We have been in contact, has contacted me to discuss this issue, which I think is very concerning for many people, particularly the motorists around the UK, in particular here in Birmingham. I know very well that the clean air zone is starting while we're speaking today, is the 14th of June 2021. Is two weeks. It was delayed by 2 weeks due to the negligence of Birmingham City Council, which is led by the Labour Party for the last 10 years or so. So of course now they presume that they've put things right. So if you're coming into Birmingham now, you will have to pay for £8 for a normal vehicle, which doesn't meet the compliance and the regulations. And also, if you're a lorry driver, I believe you have to pay £50 every time you enter Birmingham, particularly the Birmingham city centre and the surrounding areas. Now this is really affecting all our communities. As you know, before going on air, I conduct, my producers and my research team, we conduct our own independent research where we approach people and get their views and feedbacks. But this evening's program is not just about the clean air zone. It's another issue which is affecting many motorists right across the UK, is the motorways, the three-lane motorways, and sometimes even the dual carriageways, where people are mistakenly fined. For example, if there is cameras or if there are any signs on the motors which are clearly stating, especially when it comes to roadworks, that you have 50 miles per hour to do or 60 miles per hour, and then suddenly, without giving you any notice, it drops down to 30 miles per hour. Now a driver mentally is prepared to go 50 miles per hour or 60 miles per hour, without realizing or knowing, with less sort of information given to him on the roads, and then suddenly it changes to 30 miles per hour in a week or 2 weeks or 3 weeks after he receives a ticket stating that you were doing 50 miles per hour in a 30-mile zone. So that is something which has really affected our guest as well, which we're going to talk about. And also, very briefly, Birmingham City Council last week has also raised the permit prices in Birmingham. Yes, if you're parking around the Birmingham city centre, and the prices of those have almost doubled and tripled when it comes to parking and so on. So there are many issues here in the UK, particularly here in Birmingham. I know that people are fuming at this moment, and as you can imagine, due to the COVID restrictions and the lockdown for nearly 2 years, people are already frightened to go into Birmingham. We've had Selfridges and many Debenhams, I beg your pardon, who have left Birmingham Bullring due to less people turning up into Birmingham city centre for shopping and so on. Of course, people are not going to turn up because, number one, they're scared of COVID and they fear for themselves and for their families. And second, now there's another issue of the £8 that you have to pay on top to come into city. So this is, God forbid, but we're heading towards a ghost town in Birmingham where people will be frightened to come in. Particular, people that love to come, love to enjoy Birmingham city centre when it comes to eating out, dining out, clubbing and so on. But we got so many things to talk about.
much. So as I said, this is just a very brief introduction which I've given you. I'm sure my guest will further give you further in-depth knowledge about what's going on here in Birmingham. So first and foremost, let me officially welcome the one and only Khalil Ahmed. Welcome to Your Britain, sir, and welcome to Kanshi TV. थैंक यू शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद इकबाल, आप हमें देख रहे हैं जी स्काई 772 चैनल पर योर ब्रिटेन प्रोग्राम कांशी टीवी पे। बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का। असल में जब से ये शुरू हुआ है ना क्लीन एयर जोन, तो काफ़ी लोग जो हैं परेशान थे, खुसूसन ऐसे लोग जो कि सिटी में जिनका बहुत आना जाना है, स्पेशली हमारे टैक्सी ड्राइवर्स भाई, तो वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि बेशुमार गाड़ियाँ जो हैं वो पुरानी गाड़ियाँ हैं। जैसे डीजल का अब जो है उन्होंने सिस्टम शुरू किया है कि 2015 एंड अबव नंबर प्लेट वाली जा सकती हैं, और डीजल और जो पेट्रोल है वो 2006 एंड अबव। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उन्हें मदद के नाम पे बस वो थोड़ा बहुत दे रहे हैं। जैसे अगर आप स्क्रैप अपनी गाड़ी करेंगे तो 2000 पाउंड तक मिलने के चांसेस हैं, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा। बिल्कुल, क्योंकि नई गाड़ी अगर आप देखें ना, ये जो है हाइब्रिड, ये कम अज़ कम आ रही है, चली हुई गाड़ी तकरीबन 10 से 12 हज़ार पाउंड की मिल रही है, और अगर फुल इलेक्ट्रिक आप ख़रीदेंगे तो 40-50,000 की वो गाड़ी है। तो इन लोगों को जो है ना अभी शुरू, क्योंकि कोरोना के जो क्राइसिस गुजरे हैं उससे लोग अभी रिकवर नहीं हुए। जी, तो सजेशन ये थी कि इसे थोड़ा सा डिले करना चाहिए था, मज़ीद डिले करना चाहिए था, कम अज़ कम 1 साल और देना चाहिए था, ताकि टैक्सी ड्राइवर अगर उनको काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम अगर उनका इम्प्रूव हुआ है तो थोड़ी मज़ीद मेहनत कर लें, उसके बाद वो शायद इस काबिल हो सकें कि गाड़ियाँ ख़रीद लें। Viewers, let me remind you, normally I do my programs in English, but there are certain programs which I carry out in Urdu and of course in our beautiful Patwari Zuban as well. And I think today is one of those programs which Khalil Saab is feeling more comfortable speaking Urdu and a few words in Patwari Zuban, because I know millions of viewers are watching us around the world. We're one of the highest rated programs, Brother Khalil, that people watch Your Britain every week. You know, we have so many viewers watching this around the world. तो मैं थोड़ी सी बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मेंशन किया, सबसे पहले मुझे ये समझ अब तक भी नहीं आ रही है कि अगर आप सिटी सेंटर के अंदर जाएं, सिटी सेंटर के अंदर, तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। आप पोल्यूशन आपको अटैक कर लेगी, आप पोल्यूशन को शायद अटैक कर लें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप बाहर आ जाएं अगर 1 या 2 मील, तो क्या वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती है? अभी हम रास्ते से आ रहे थे, बेशुमार गाड़ियाँ थी, बेशुमार ट्रैफिक थी रास्ते, तो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट अ मनी मेकिंग स्कैम, that the council is implemented this just to make the ends meet for their revenues, for their books. There is absolutely no need for this type of activity to go on. But on the other hand, the council's argument is we are saving lives. Now, many people I've contacted the councillor, the cabinet member, Wasim Zafar Saab, to please come to this show and express his views and concerns. But as usual, no response back from him to come onto Your Britain. So I'm sure if he's listening out there, people would love to hear from you live why you have implemented this policy and why are you charging people £8. If you were going to do it, why can't you charge people minimum £2, maybe £2.50, £3, जो हर आदमी इजीली अफोर्ड कर सकता है। अभी £8 ये इनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आम आदमी है, जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, हमारे लिए 8 और कितने लाखों हमारे बहन भाई हैं, £8 अगर वो दे के जाएंगे भाई, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी ना। £8 रोज के प्लस पार्किंग फी एज वेल, प्लस पार्किंग, तो कम से कम अभी तो गाड़ी लेके जाएंगे, फिर गाड़ी को पार्क करेंगे, तो उनके रफली 15-20 पाउंड तो वो सिर्फ उसी चक्कर में लग जाएंगे पार्किंग में, और दूसरा ये जो क्लीन जोन है 20 पाउंड उनके ये हो गए। आगे उन्होंने बेचारों ने शॉपिंग भी करनी है, सामान भी लेना है, बच्चों को भी कोई लेके देना है, खाना पीना भी सिटी सेंटर के अंदर करना है, तो ये तो चक्कर उनका रफली जो टोर है वो तो 70-80 पाउंड। अगर आपके 2 बच्चे हैं, खाना भी आपने खाना, कपड़ा 70-80-90 पाउंड तो आपके लगे उधर वहाँ जस्ट टू गो इनटू सिटी सेंटर। तो इसके हवाले से जो हमें रिस्पॉन्स मिली है कि ज़ाहिर है आपकी अपनी ओपिनियन अपनी है, लेकिन जो
हमें रिस्पांस ये मिली है कि देयर वाज नो नीड फॉर दिस इज अननेसेसरी एंड इट शुड बी स्क्रैप्ड कंप्लीटली एंड बर्मिंघम शुड बी रनिंग एज नॉर्मल। व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? मेरा ख्याल है जानता कि वो सिटी को ज़रा ज़्यादा ग्रीन बनाना चाहते हैं, क्योंकि सिटी में काफ़ी लोग विजिट करते हैं, तो उनका मकसद ये है कि पुरानी गाड़ियाँ ना, कि पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। जी। तो इस वजह से उन्होंने ये जो है ना चार्ज लगाया कि जो स्पेशल सिटी सेंटर का एरिया बुलरिंग है, काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है, ताकि लोग यहाँ ना आए। साइकिलें, आपको पता होगा साइकिलिंग ट्रैक भी इंट्रोड्यूस किया गया, देयर आर सो मेनी साइकिल्स। तो मकसद ये है कि सिटी में अगर आए लोग तो बसेस पे सफ़र करें, साइकिलों पे सफ़र करें, या पैदल आएँ, गाड़ियाँ दूर खड़ी करके आएँ, ताकि सिटी इनसाइड सिटी सेंटर ज़रा वो पोल्यूशन कम हो। ये उनका एक मकसद है। ये तो उनका मकसद है ना। अब जो लोगों का मकसद है, जिस तरह लोगों ने हमें रिस्पांस दी है, जिस तरह मैंने अभी इंग्लिश में भी कहा, भी मैं आपको लोगों व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल सी बात है कि सिटी में उनको इतना ख़तरा है कि लोगों की जानें चली जाएंगी, ये होगा वो होगा। क्या सिटी के बाहर खतरा नहीं है? अगर 1 मील का ज़िंदगी का उनको खतरा कि 1 मील हम सिटी के अंदर जाएंगे तो लोगों की ज़िंदगियाँ चले जाएंगी, ये होगी वो होगा, लेकिन 1 मील पीछे क्या उन लोगों की ज़िंदगी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा? गुड पॉइंट है आपका। रिंग रोड बिल्कुल सिटी सेंटर के बाहर ही है रिंग रोड, और बिकॉज ऑफ दैट रिंग रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ऑलरेडी हो गई। अभी जो वोटरी लेन है, जी, जो जितनी डाइवर्ट ट्रैफिक होगी, जो सिटी में अंदर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि 8 पाउंड लोग नहीं देना चाहते। मैं आपको क्लियर ये बात बता रहा हूँ खलील भाई, लोग अपसेट हुए हैं, बहुत ही ज्यादा अपसेट हुए, कहते हैं भाई हमारे पास 8 पाउंड नहीं है। वो अब क्या करेंगे? उन्होंने रूट निकालना है वोटरी लेन का। वोटरी लेन पे ज्यादा। अभी मुझे बताएं, क्या वोटरी लेन में पोल्यूशन नहीं होगी जब बम्पर टू बम्पर गाड़ी टच कर रही है? बेशुमार। हाँ, ये पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में एज यू नो लंदन में हो गया, बाथ में है, देयर आर सो मैनी अदर सिटीज जहाँ पे ये जो ना सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो सूनर या लेटर बर्मिंघम काउंसिल ने ये करना ही करना था। अच्छा। तो मैंने खुद भी इस पे रेडियो पे भी प्रोग्राम किया था। जो लोगों का जो व्यूज़ थे ना, वो कह रहे थे कि इसे कम अज़ कम साल, 1.5 या 2 तक ना अगर पोस्टपोन कर दिया जाता तो इट वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया। प्राइस के हवाले से आप मुझे बताएं, चलो अगर पोस्टपोन ना भी करते, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक हम उनकी बात मान ही लेते हैं कि भाई ठीक है, ओके, डोंट पोस्टपोन इट। 8 पाउंड का ये क्या सिस्टम है? एक फिक्स प्राइस उन्होंने, इतनी हाई रैंकिंग प्राइस उन्होंने लगा दी है कि जी 8 पाउंड दे के आप अंदर आए। व्हाई कुडंट दैट बी अ पाउंड? व्हाई कुडंट इट बी अ 2 पाउंड फीस? हाँ, बिगनिंग में थोड़ा आसान करना चाहिए था, इजी करना चाहिए था और सस्ता करना चाहिए था। 2-2.5 पाउंड ये चलें, 3 पाउंड तक ठीक था। 8 पाउंड काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ी सी मैं आपकी भी बात पे आऊँगा टैक्सी ड्राइवर के हवाले से, लेकिन उससे पहले तो जो हमारी बिजनेसेस है सिटीज़ के अंदर, वो तो तबाह हो गई हैं भाईजान, क्योंकि वो तो 50 पाउंड ट्रक ड्राइवर जो है, 50 पाउंड उनसे ये कास्टिंग है उनकी। ये बेचारे 50 पाउंड किधर से देंगे? अभी कोचीज़ के भी 50 पाउंड हैं, ये मैं कह रहा हूँ, कोचीज़ के भी 50 हैं। अच्छा, कोचीज़ के भी 50 हो गए, और ये जो हमारी लारीज हैं डिलीवरी की वगैरह वगैरह, ठीक है, ये बेचारे 50 पाउंड किधर से लेंगे? ये बिजनेस की क्या हालत होगी सिटी के अंदर? अब सिटी के अंदर आप देखें ना, डेब्रम्स भी बंद हो गई है। जितनी बड़े बड़े स्टोर थे सिटी के अंदर, जो क्योंकि सैलवेज बनाई जब इन्होंने तैयार करवाई थी, तो इनके जहन में सिर्फ 2 ही बातें थी, और 2 इनके की रोल फाइनेंशियल प्लेयर्स थे उनके अंदर, एक सेल्फ्रिजीज और एक डेबनम्स, और दूसरी सेल्फ्रिजीज हिस्सा। एक तो इनकी चली गई है, 50% इज गॉन। 50% चला गया। सेल्फ्रिज अभी है उधर जी, वो भी चंद जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं, चंद महीनों की बात है, दे कैन सर्वाइव लाइक दिस, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर, कम से कम हज़ारों के लोगों की वेजेस, तनख्वाह वगैरह वगैरह, अब सिटी के अंदर तो कोई जाने वाला है नहीं। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ कि जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड लोगों से लिया है, इवन नाइट क्लबिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि नाइट लाइफ भी सिटी के अंदर अभी भी खत्म हो गई है। अभी तो है ही नहीं। अब इसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो कोरोना ने किया ना, कोरोना ने किया, तो जो फ़र्क था अब जो है वो फ़र्क जो है बिल्कुल सही। इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि अब जो है ना, ये जो चार्जिंग वगैरह लगाई गई है, इसे बनाया गया क्लीन एयर जोन, इसे डिले करना चाहिए था बिजनेस को बचाने के लिए। लेट इट गो बिल्कुल बैक नॉर्मल। और दूसरा, आपको भी शायद दिल में, जो वहाँ लोग रहते हैं उन्हें जो है ना एग्जेम्पशन दी गई है फॉर अ ईयर। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, और इवन जो लोग जो है ना 16+ आवर्स काम कर रहे हैं, उन्हें भी 1 साल की जो है ना एग्जेम्पशन दी गई है। उस बात में मैं आने वाला था, उसके बाद क्या होगा उन बेचारों का खलील भाई? 19 साल जो है ना दिया गया, एज आई थिंक कि साल के अंदर अंदर या काम छोड़ो या गाड़ी इधर से बदलाओ। नहीं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं ना, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। एज 1 ईयर आई थिंक नॉट दैट मच इनफ, बट गुजारा हो रहा है, इनफ टाइम है कि आप जो है ना गाड़ी तब्दील कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं थोड़ी सी आपकी बात पर
क्योंकि जो तो हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं भाई वो तो बिल्कुल घबराए हुए हैं, सीधी जो बात है। अभी जिस तरह आपने पहले ही मेंशन किया है कि ब्लैक कैब वालों को दे रहे हैं 5,000 जो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और वो भी ब्लैक कैब एंड प्राइवेट हायर पीपल्स who got licensed from Birmingham City Council. अच्छा, not from Solihull Council, not from Sandwell Council, not from Walsall Council, only people who actually got license from Birmingham City Council, only they will get 2,000 and 5,000. अच्छा, ये मुझे आप बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एवरेज जो अभी आपने तो प्राइवेट गाड़ी की बारी प्राइवेट हायर व्हीकल के बारे में तो आपने बात की है कि 10 से 15,000 तक गालबन रफली आपको वो मिलेगी, वो भी रीजनेबल मिलेगी। जो अगर आप कहेंगे बहुत नई मिले या अच्छी मिले वो तो 20-25 हज़ार की है, 30 हज़ार की अच्छी गाड़ी है, लेकिन गुजारे काम के लिए 15,000 तक एवरेज। अभी मुझे बताएं कि जो बेचारा 30 पाउंड दिन का कमाता है फिलहाल, ठीक है, उसकी एवरेज 30-40 पाउंड है, जो हालात अभी 2 साल हो गए जो हालात हैं, ठीक है। अभी वो बेचारा सबसे पहले 15,000 किधर से लेके आएगा? अगर अब उसको 2,000 दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है कि भाई वो भी बर्मिंघम बैच वालों के भाई आप 2,000 दें और बाकी 13 या 14,000 अपनी पॉकेट से दें। ये बेचारी जो टैक्सी की बिज़नेस है ये किस तरह सर्वाइव करेगी? और इसी के साथ मैं ये भी आपसे सुनना चाहता हूँ कि जो 5,000 दे रहे हैं ब्लैक कैब वालों को, अभी मुझे ये बताएं कौन सी ब्लैक कैब है जो 5,000 की मिलती है? एवरेज ब्लैक कैब जो नई वाली है ऑलमोस्ट न्यू, रफली अबाउट 45-50,000 इसकी कास्ट है। 55 रफली नई की तो इतनी डेफिनेटली है। चलो अगर पुरानी भी है तो 40,000 जो डिसेंट गाड़ी है वो 40,000 की आएगी। क्या वो 5,000 से वो लेके आएंगे उसको? तो इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो फंडिंग लोगों को दे रहे हैं 2,000 या 5,000, इज़न्ट दैट जस्ट? वो तो मैंने शुरू में कहा कि लोगों के साथ उनके मुंह में जीरा है, उनके मुंह में जीरा है, यानी इट्स टू लेस, वाकई बहुत लेस है। ये तो मजाक है ना अवाम के साथ, कम्युनिटी के साथ। अभी जब ये काउंसिल के बस की बात है, ये जो फिगर्स है, चलो अगर काउंसिल आर्ग्यूमेंट कर रही है जी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो पूरे दुनिया है या पूरे यूके है वो क्लीन एयर जोन लेके आ रहे हैं, उसमें तो वो थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो डिफेंड तो नहीं कर सकते, ये बजट तो इनके पास है ना। अभी जब बात आती है तो कहते हैं नहीं जी फलां गवर्नमेंट पावर में है तो वो हमें बजट नहीं देते। ये तो कोई ऐसा ही आदमी है जाना जाओ जो उनकी बातों में आए, जिसे ना पता, हर आदमी को पता है। तो मैं लोगों से, हमारे भाइयों से, बहनों से ये पूछना चाहता हूँ, टैक्सी ड्राइवर जो हमारे हजरात हैं उनसे, कि क्या 5,000 से आपको ब्लैक कैब मिलेगी या 2,000 से आपको गाड़ी मिलेगी जिसमें आप अपना काम करेंगे? पहले काम बिल्कुल काम, इसके हालात ऐसे हैं कि काम डेड हो गया, क्योंकि आप इसी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आप जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि लोग किस तरह हजूर सर्वाइव करेंगे। मुश्किल है सर्वाइव करना। इसी वजह से मैंने पहले भी कहा कि नहीं, कम से कम ना जो लोग रेगुलरली सिटी में काम करते हैं, वेदर दे आर टैक्सी ड्राइवर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स और एनीबडी एल्स वर्किंग इन सिटी सेंटर, उन्हें जो है ना कम से कम 1 साल की मज़ीद छूट देनी बनती है कि थोड़े जो है ना वो ज़रा हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, थोड़ा कमाई कर लें, क्योंकि अभी कोरोना से मुकम्मल तौर पे तो निकल ही नहीं पाए। कोरोना इस बात में तो आधे घंटे के बाद, कि पहला हमारा ये टॉपिक था, दूसरा आधा घंटा मैंने कोरोना पे बात करनी है। जी हाँ, अभी कोरोना से यही मैं कह रहा हूँ कि निकल ही नहीं पाए। अभी तो उन्होंने जो ना मुकम्मल लॉकडाउन जो खोलना था 21 जून को, उसे मजीद डिले 4 हफ्ते और डिले कर दिया है। तो उसके बाद जब निकलेंगे, अगर बिलफर्ज थोड़ा बहुत कोई लोग ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं या टैक्सी ज़्यादा पकड़ते हैं तो उसे टाइम लगता है ना, उस जगह तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में अभी भी अपना क्या नाम उनका, कौन से ज़फ़र हैं, वसीम ज़फ़र साहब को सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत इन लोगों को और टाइम दे देंगे, जैसे दिया ना मुकम्मल रहने वाले लोगों को। उनको हमारे भाई हैं वो उनको देख रहे हैं कि RUT जो उनकी टैक्सी एसोसिएशन है वहाँ, तो वो लंदन भी जाते हैं उनके साथ। तो क्या भाई ये जो हमारे प्राइवेट हायर ड्राइवर हैं, कि ये आपके भाई या आप कि इनका दिल या दर्द आपके कोई बिल्कुल आप इनका फील नहीं कर रहे हैं? अगर उनके साथ आप खड़े होकर कहते हैं नहीं जी आप लंदन भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ हम देंगे, तो क्या प्राइवेट हायर ड्राइवर जो है, जो भी है, बर्मिंघम से है या सालीहुल से है या सैंडवेल से है, क्या ये लाइसेंस फी नहीं दे रहे? बिल्कुल बर्मिंघम सिटी काउंसिल को वही क्राइटेरिया ये मीट करे, वही अमाउंट है, वही लाइसेंस फी है, वही खर्चे ये दे रहे, क्या इनका राइट नहीं ये बनता है? So you need to reconsider your, view on this right across the board, that you should treat all the drivers on an equal platform. You can't favor one sector of the field, i.e. black cab drivers, and discard
the other sector as private hire drivers. And let me also remind you, I will be talking to you about this, Khalil bhai. आगे मैंने ये प्रोग्राम कितनी बार मैं कर चुका हूँ, हमारे बहुत से दोस्त इधर आए. बस लेन्स बर्मिंघम के अंदर क्या प्राइवेट हायर के लिए बस लेन क्यों बंद किए गए हैं? सिर्फ ब्लैक कैब यूज़ कर सकती है उनको. ब्लैक कैब्स को वो एज ए टैक्सी काउंट करते हैं. जी जी. और प्राइवेट हायर को दे कंसिडर कि ये प्राइवेट हायर दैट्स कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पैसेंजर एंड ड्राइवर. So right. that's private hire. But still, the city council is taking still the fees, fees still the license fees, same MOTs, almost identical. Everything is identical. उनको वो राइट क्यों नहीं मिल रहा है कि भाई आप भी बस लेन यूज़ करें? मेरे ख्याल में ये जो ना ये कमज़ोरी प्राइवेट हायर एसोसिएशन की है. उनकी कोई ख़ास एसोसिएशन नहीं है जो उनके हक़ के लिए लड़े, उनके हक़ के लिए बात करे. तो प्राइवेट हायर ड्राइवर्स को जो ना इस सिलसिले में मुतहिद होना चाहिए, यूनाइट होके जो ना इस अगर अपने हक़ के लिए लड़ें. शायद आपको मालूम हो 2006 और 2007 में जो ना टेम्प्रेरी बेसिस पे दी गई थी बस लेन इनको, लेकिन इसके बाद फिर जो ना ये फैसला बदल दिया गया. आई डोंट नो व्हाई. अच्छा, खुला था जो एक मीटिंग भी बहुत बड़ी हुई थी ना विला ग्राउंड में. तो वो जो ऑफिसर आए तो वो दरवाजे आगे से आए थे और फिर पीछे दरवाजे से वो चले गए थे. वो भी मुझे थोड़ा सा इल्म है उस वक्त का. बिल्कुल. तो उस वक्त ड्राइवरों ने काफ़ी शोर मचाई थी कि भाई हम भी लाइसेंस दे रहे हैं, हमें भी इक्वल ट्रीटली इक्वल करें एंड फेयर ग्राउंड करें. आप ये नहीं कि एक के साथ इस तरह डील करें, दूसरे के साथ इस तरह डील करें. लेकिन उसके बाद बिल्कुल आप राइट है, उसके बाद दोबारा ऐसी मीटिंग हुई नहीं है. इन्होंने खुद ही ना. तो अब गालबन क्या 15 साल हो गए, रफली 14-15 साल हो गए मीटिंग. गालबन इतने हो गए, उसके बाद मीटिंग ही नहीं हुई. तो ये भी कमजोरी है ना. देखें कौंसिल की तो हाई कौंसिल तो दे वोंट फेस, वो इसे फेस ही नहीं करेंगे. लेकिन जो है प्राइवेट एसोसिएशन वो इस सिलसिले में जोर ही नहीं दे रहे. कोई बनी थी मेरे ख्याल में, पता नहीं है अब वो स्टिल एग्जिस्ट करती है या नहीं. वो बनी थी चंद अर्सा पहले वो बनी थी, लेकिन उसकी बुनियाद ये थी कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या आपको कोई प्रॉब्लम इस किस्म की हो तो फिर हमारे पास आए तो 50% हमारा शेयर और 50% आपका शेयर है. इस किस्म की बहुत ऑर्गेनाइजेशन बनती रहती है. अक्सर बर्मिंघम तो हब है इन चीज़ों का. सियासी जमातें देखें, कारोबारी जमातें देखें, समाजी देखें, जो भी देखें, रिलीजियसली देखें, तो जमातें तो दिन रात. बर्मिंघम इज़ वेरी वेल नोन टू मेक ऑर्गेनाइजेशंस नॉन स्टॉप एवरी डे. कम से कम 1-2 जमातें तो बनती रहती हैं. हाँ, आगे उनको चलाना मुश्किल है, वो एक सेपरेट इशू है. लेकिन बनाने में माशाल्लाह हमारी कौम को कोई खलील भाई तकलीफ होती नहीं है. 1 सेकंड के अंदर वो बना देते हैं. तो बनाएं तो फिर उससे चलाएं भी ना. चलाना दुश्वार है मेरे ख्याल में. बिल्कुल, बनाना तो सही. कहते हैं नहीं बन गई है ना, नाम हो गया हमारा तो बस ठीक है जी, काम चल रहा है. तो इस हक के हवाले से मैं ज़रूर ये समझता था कि इस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो भी इश्यूज होते हैं, जो सीरियस इशू है, आई डोंट लाइक टू शव एनीथिंग अंडर द कार्पेट. व्हाटएवर इट इज, वी वांट टू मेक श्योर दैट वी कैन बेनिफिट द व्यूअर्स एंड बेनिफिट द कम्युनिटी एंड मेक श्योर वी कैन गेट स्प्रेड द राइट मैसेज आउट टू मेक द अवेयरनेस फॉर आवर कम्युनिटी. सो उसके हवाले से ये थोड़ी सी हमने बात करनी थी. अब मैं आता हूँ आपकी दूसरी बात पर, कोरोना पे मैं तो आऊँगा, लेकिन कोरोना से पहले जो आपके साथ पिछले दिनों में मोटरवे पे जो आपके साथ हादसा हुआ है, थोड़ा सा पहले व्यूज़ को आप बताएं ना आपके साथ क्या हुआ. तो चंद मेरे पास सवाल है उसके. हुआ ये कि मैं सफ़र कर रहा था फ्रॉम जंक्शन 6 टिल जंक्शन 9. आई वाज ट्रैवलिंग. तो जैसे नॉर्मल स्पीड होती है, आपको पता ही है कि 70, लेकिन अगर रोड वर्क वगैरह हो तो 50 तक होती है. जी जी. तो मैं बस नॉर्मल ड्राइव कर रहा था. आई इवन नेवर नोटिस दैट कि ऊपर जो होता है ना उनकी वो वहाँ उन्होंने रेड जो है लिख दिया कि स्पीड इज़ 40. तो मेरा ध्यान नहीं था. मैं आम तौर पे जो ना साइड पे देखता हूँ, साइड पे उन्होंने 50 लिखा होता है, तो 50 साइड पे नहीं था. तो आज जस्ट ड्राइविंग नॉर्मली ऑन 50. ठीक है. थोड़ी सी ट्रैफिक थी तो 50 चला रहा था. लेकिन गालबन तीसरे या चौथे दिन मुझे नोटिस आ गया जी कि there was a 40 speed limit and you were driving on 49. तो आपको जो है पॉइंट लगेंगे 3 लाइसेंस पे. अगर आप पॉइंट वगैरह नहीं लगवाना चाहते. फाइन भी था उसके साथ? फाइन भी 100 पाउंड फाइन था. 100 पाउंड फाइन एंड 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स. ओके. तो इसके एक और ऑप्शन था कि अगर आप कोर्स करना चाहें कि 3 साल अगर आपने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया तो वी आर ऑफरिंग यू कोर्स. तो फिर मैंने उनसे बात की, लेटर लिखा कि मेरे ख्याल में ये अनफेयर है, मुझे आप जो ना एविडेंस दें इसका कि वहाँ वाकई स्पीड 40 थी. उन्होंने खैर मुझे एविडेंस भेजा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपने अचानक तब्दील कर दी. लाइक आई ट्रैवल्ड फ्रॉम जंक्शन 6, सो आई नेवर सीन एनी बोर्ड बिफोर दैट. या सो वाई जस्ट सडनली दे चेंज दैट. लेकिन इसका कोई उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया. सिर्फ ये लिखा कि इफ़ यू गोइंग टू कोर्ट
there is an option sign tick the box. Yeah, tick the box and we'll talk to you on in the court. अच्छा। तो मैंने सोचा यार हैसल ही है, कोर्ट में हो सकता है हार ही जाऊं, बिल्कुल शरीफ आदमी, हमारे पास कोर्ट जाने का टाइम भी नहीं और डर भी थोड़ा लगता है, तो मैंने वो टिक कर दिया कोर्स का। तो मैंने कहा यार कोर्स ही कर लेते हैं, जान चढ़ा से गल्ला खड़ियां गल्ला होंगी। नहीं सही बात है ना, अब कोर्ट में जाना ये सारे पास में कम नहीं है। मैंने सोचा वैसे टाइम जाया कर, हो सकता है सच्ची बात है वो कोई बात ऐसी ही कर दें, जज जी मुझे कहेंगे तुमने क्यों नहीं नोटिस किया पहले, हो सकता है वहाँ उनके पास कोई हो। मैं आमतौर पर यकीन मैंने साइड पे देखता हूँ, ऊपर बोर्ड जो है ना वो जो साइड पे उन्होंने बड़े बड़े लगाए थे वो देखता हूँ, ऊपर बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद मैंने तो वतीरा बना लिया कि दिमाग ऊपरी बोर्ड पे सेट कर अच्छा, तो फिर मैंने कोर्स एक्सेप्ट कर लिया उनका। ये तो चलो आपने तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप कह रहे हैं कि शायद मैंने नहीं देखा, शायद की बात है, जी, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि समटाइम्स दे डोंट गिव यू इनफ नोटिस। ड्राइवर जो होता है वो उसका माइंड सेट होता है कि यह 70 है मैं 70 करूंगा या 50 है 50 करूंगा, और अचानक वो स्पीड 50 से 30 लेके आते 30 आ जाए मोटरवे पे, यानी इमेजिन हमने कभी किया नहीं। अच्छा, आजकल खास करते ये स्मार्ट मोटरवे बना दिया ना, जी। इनका तो जब मूड बनता है इवन 30 क्या दे गो सम टाइम ऑन 20 और आदमी को बिल्कुल नहीं पता होता, बस का ध्यान ही नहीं होता। मेरे एक दोस्त उस दिन ड्राइव कर रहे थे, तो वो कहने लगे कि मैं पीछे था तो मैंने देखा कैमरा फ्लैश कर रहा है, 20 स्टेट में 20 हुई है वो, तो कहने मैं स्लो हो गया और देखा कि जितनी कारें वहाँ से गुजरी सब पे फ्लैश बजा। ये जो आपका बर्चफील्ड रोड का जो फ्लाईओवर था, आपको पता है कि आप दिन रात वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, लोकल आपके लिए, वहाँ पे आपने सुना होगा या देखा होगा पिछले दिनों में रिपोर्ट से कि गालबन 3000 से ऊपर उन्होंने लोगों को वहाँ पे फाइन किया है। नीली 3300-3400 पीपल वो फाइंड ऑन दैट, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे 20 उन्होंने लिखा, 20 लिखी हुई है, ठीक है, और लोगों को ये क्योंकि 20 बिल्कुल एक छोटे से बक्स पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 20 है, 1-2 सिग्नल है, लेकिन ज़ाहिर जब आदमी गाड़ी चलाता है उसका माइंड रोड पर भी होता है, लेकिन एक इंसान है, ह्यूमन नेचर है, इज मे बी थिंकिंग गॉड नोज व्हाट, राइट, तो वो तो नॉर्मल समझे कि ये 30 है या 40 है। अभी इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, तो 3000 से ऊपर सर उन लोगों को फाइन हुए हैं टू कमिट द स्पीडिंग पेनल्टीज बिटवीन व्हाई डिड यू ट्रैवल ओवर 20 माइल्स पर आवर, दिस वाज अ 20 माइल रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अब तो ये हालात है आपके घर के नज़दीक। हाँ बिल्कुल, वो ड्यूल कैरेज वे है ना, ऑटोमेटिकली बंदा सोचता है यार कि 20 वहाँ पे तुक नहीं बनती, जो सीधी बात 20 कर ही नहीं सकते आप ड्यूल कैरेज पे, हाउ कैन यू डू 20 ऑन अ ड्यूल कैरेज? हाँ, तो लोग सोचते नहीं हो कि ज़्यादा 30 होगी, क्योंकि ये जो A34 है ना, फ्रॉम वन स्टॉप टिल न्यू टाउन रो, जो बड़ा सा रॉयल मेल है वहाँ तक 30 है, उसके बाद जाके बल्कि 30 है 40 तो वोलसेल रोड पे जाके आगे आती है ना, तो बंदे यही सोचेंगे 30 है, 20 का तो ज़हन में नहीं आता अनलेस कि यू सी दैट बोर्ड, और फिर जो है ना आप 20 पे स्लो हो जाए। बहरहाल तुसां तो बहुत चेहरे हो कि पहले तुसां हैंड्स अप करी उड़े कि ठीक है जी गलती में तस्लीम अपनी करी, क्या करें जी, सही बात है, हम कानून पसंद लोग हैं, लो अबाइडिंग सिटीजंस हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं। खलील भाई मैं चाहता हूं कि मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, लाइव कॉल्स भी हमारे आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज ईमेल भी काफ़ी यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। अभी मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस का मैसेज पढ़ूँ, कौन कौन सी फ़ोन लाइन उठाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात कर लें। मैं आपसे वादा करता हूँ व्यूअर्स, अगर मेरे पास टाइम हुआ एंड पर तो मैं 2-4 फ़ोन्स आपके उठाऊँगा, लेकिन कीप दैट एज not you know I'll see what I can do for you। अच्छा, अब थोड़ी सी आते हैं हमारी अपनी जो मिरपड़ी ज़ुबान है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपकी मिरपड़ी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, मादरी ज़ुबान है, बड़ी अच्छी मिरपड़ी से बोल रहे हो, और सारे दोस्त व्यूअर्स भैन भाई उन्होंने एक ख्वाहिश भी ऐसी, क्योंकि जिला ज़ाहिर है मीडिया ने अंदर सौ पोस्ट चलियाँ, प्रोमो चले, दुआ त्री है, काफ़ी बंदियां माना खुद भी रब्ता किया, उन्हें खलील साहब अज आए रहे, तो अज इन्हों को तुसां ज़रूर उर्दू सुननी है। उर्दू मैं उर्दू तो मास्टर न, तो पठवाड़ी ज़बान मास्टर न, ज़बाना सारियां जो माशाअल्लाह मास्टर न, लेकिन रिक्वेस्ट आई सी कि तुसां थोड़ा जा उन्होंने को अपनी मिरपड़ी ज़बान में गल करनी है। जी ज़रूर। अच्छा, हुण मिगी तुसां दसो
ये तो हो गया ना थोड़ा सा इशू जरा असा किया ये ट्रैफिक ने वाले नाल और बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने क्लीन एयर जोन वाले नाल और मिगी उम्मीद है कि लोग इन गल्लां दा फायदा उठासन और अपने जितने भी लोकल काउंसिलर ने तुसां ने अक्खी नुट्टी दा वोट जिहड़ी बने हो ना मैं तुसां हत्थ बनना है और हर प्रोग्राम में हत्थ बनना तुसां अक्खी नुट्टी दा वोट ना पाओ कि फलाने ना चाचे ना पुत्तर है मावे ना पुत्तर है फलां मोल साहब है फलां राय साहब है फलां चोई साहब है फलां मिर्जा साहब है चौहान साहब खुदा का सवाल है उन्होंने बंदियां की वोट दो जिहड़े बंदे वोटर ने हकदार ने जेडे वोट किस्म ने जेडे तुसां कम करी सकते हैं ये रातों रात जेड़ा ना मतलब सियासतदान ना तो इन्हां में आना सारे ना ये मैं नोट जरूर करना मैं सारे की नहीं आ गया अक्सर तौर पर शाम पैनी उन्हें पता कल सुबह इलेक्शन है तो रात अच्छी था और तो गल ही नहीं करने सीधे अच्छी था अजकल नवा सिस्टम बनता जी सीधा अच्छी तो पेरेंट ही पैने पेरेंट ही तो आने जी माफ करिए तो सड़ी ते कमजोरियां देखो जी बंदा आया हो पैर लपड़ी हुन मैं क्या करूं या पग सट्टी होड़ी से उस तो कहते हुन चोई साहब गया छी पग सट्टी होड़ी है तो हुन पग्गा ना लाज रखने ना खुदा ने बंदे इतना सारे बच्चे ना सारी इतना फ्यूचर है इस मुल्क च असां रहना ये मुल्क साड़ा है कितने बंदे ने यकीन करो उन्होंने नजर ना ओ नी जी ये तो असां की कड्डी और सुनी इथों इन्ना कुथा असां की रखना खलील साहब मैं चाहना कि थोड़े जे जुमले तुसां कोल बड़े खूबसूरत जुमले होने थोड़े जे जुमले ना कि दसो कि जेडे आखने ना असां की कड्डी और तो फिर मैं अगले मौजू पर जुड़ा कोविड पर नहीं कड्डने तो कोई नहीं जारी गल है जेडे इत्थे लोग अच्छा सदियां तू रहन इन पे कड्डने कोई नहीं लेकिन मेरा एक अपना है कि अगर तुसां शिद्दत पसंद बनसो जी जी अगर इस कम्यूनिटी की डिसलाइक करसो तो इन्हां खिलाफ तुसां कोई कार्रवाइयां करसो तो उन्हां लोकां ने जेडे पर्टिकुलरली इन्हां कम्मां च इन्वॉल्व हो सन उन्हां ने तो ज़ाहिर गल है नैशनैलिटी खत्म करसन तुसां सुनिया उसी और देखा भी उसी जी शमीमा बेगम नाल केस होया सी बिल्कुल नहीं वापस अचन दिता एक्चुअली माड़ा दिल सी कि वो शायद उसकी वापस करें बिकॉज शी वाज बोर्न ब्रिटिश लेकिन इना वास्ते टेस्ट केस सी इना है अगर उसकी देयू लेना तो अगर स्टैच्यू बनी गया तो कल असां की सारे ही देना देयर आर सो मेनी अबाउट 2000 पीपल जेडे आईसीस की ज्वाइन कीता सी तो ए शिद्दत पसंदी ना इख्तियार करो तुसां कानून पसंद शहरी बनी तो रवो इस मुल्क की अपना समझो तो तुसां की कोई नहीं कटना बिल्कुल तो इस मुल्क यकीन मनो राइट्स असां की अपने मुल्क तो ज्यादा हासिल बेशक इतना असां की जितनी मजहबी आज़ादी है फ्रीडम है हर चीज़ है तुसां की इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी जॉब तुसां की अगर तुसां कोल काबिलियत है तुसां कोल कैपेबिलिटी है तुसां की जॉब मिलसी और मेरिट पर मिलसी ये नहीं तो सिफारिश को नहीं था मनने अगर तुसां कोल मेरिट है तालीम है देखो तुसां आपू अगर दसे तुसां ने फैमिली ने कई फीमेल मेंबर जेडे नो बैरिस्टर ये तो बिल्कुल इस तरीके अगर तुम मेहनत करसो तालीम हासिल करसो और कोई भी जॉब हासिल करना चाहसो अगर तुम उसने ऐ लो तो तुम क्यों मिल सी तो इस मुल्क नाल मोहब्बत करो तो ये मोहब्बत तुसां नाल करना मुल्क है बिल्कुल ये तो मैं आना कि बहुत अच्छा तुसां इन्हें मैसेज दिता मिकी उम्मीद है कि जितनी भी सारी कम्यूनिटी है इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी जितनी भी सारी एशियन कम्यूनिटी प्रोग्राम तकनी है उन्होंने ज़रूर मैसेज मिली गया कि यू लव द कंट्री दैट यू लिव इन एंड यू रिस्पेक्ट द कंट्री दैट यू लिव इन द कंट्री विल ऑटोमेटिकली लव एंड रिस्पेक्ट यू इन रिटर्न ये जो दिमाग आपका है ना बनता हुआ कि नहीं जी थारे नहीं देने कड्डी और अग्गे 70 साल ने कुछ कड्डिया तो हूँ कुछ कड़ सारे बच्चे सारियां आइंदा जनरेशन फ्यूचर सारा इस मुल्क चा उस मुल्क ना प्यार करो अगर तुम ना बैकग्राउंड इंडिया ना प्यार करो पाकिस्तान ना प्यार करो हर मुल्क ना प्यार करो बांग्लादेश ना उसना प्यार करो लेकिन ये नहीं कि तुम अपने मुल्क की किसी दूए बंदे ने सामने क्रिटिसाइज करो या उसकी किसी तरीके नेगेटिविटी पेश करो मैं समझदारी टोटली क्योंकि जिस मुल्क की रहने हो जिस मुल्क ने नमक खाने असा जिस मुल्क ने असा इतनी इज्जत दी है मकाम दिता है हर बंदे की फ्रीडम दी वो तुसां किधर भी मैं तुसां की चलो मिसाल पाकिस्तान ही अगर देना मैं किसी और मुल्क नहीं ना देना इतना कोई बंदा नहीं बांग्लादेश ने स्पाइनल पर या इंडिया ने जो डिफेंड करी सके लेकिन असा दोए सारा ताल्लुक पाकिस्तान तो है ठीक है मैं सोने इस मुल्क देना कि उत्थर हालात है तुसें पता ना पिछली वीक भी मैं प्रोग्राम इस तो पिछली वीक सारी जो इलेक्शन तो पहले मैं प्रोग्राम किए सन तुसें की पता कि इतना ना बच्चा गया वा खलील साहब मीरपुर ने अंदर उसकी खिलाई ये मैं मौजू इतना रेज भी किया क्योंकि मैं काफ़ी बंद रबता किया यार भी कोई लोग रबता करने ए मौजू करो ए बंदा या ए मतलब तुस हाईलाइट करो उस बंदे की जी इतने बच्चे की मीरपुर चौका विच खिलाई तो उसकी जी हरकत उन्होंने पुलिस की है कि सामने उसकी चपेड़ा और चंडा मारिया ना एक कोई इंसानियत है गलत गल है एक फिर आने जी साढ़े बच्चे जी उत्थे नहीं जाने जी साढ़े बच्चे उत्थे नहीं तो बच्चे किस तरह जा सन फिर बच्चे साढ़े बच्चे उत्थे जाइए घर कैद जेड़े हालात उत्थे तकने लगी कोई डरी जाने ना और दोबारा तो जाने नहीं पिछली वीक है 2-3 हफ्ते की गल है पता इत्थे नहीं बच्ची गई भी सी
ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲकुल जी मैं शायद तुसाने गुजरे हो उस आर्टिकल अपनू यानी वो बच्ची नी फैमिली उत्थे गई शादी उन्हें जो कुछ किया सिस्टम उत्थे ऐसे लोग इस किस्म की उन्होंने जालियत है इस किस्म की उन्होंने अनएजुकेटेड बंदे न ठीक है एक तो क्रिमिनल और नाल खाली अनएजुकेटेड नहीं अपने खलील भाई अनएजुकेटेड अलावा जालियत उन्होंने इतनी है उन्होंने अंदर या उन्होंने सोच के अंदर कि इतने नहीं बच्ची ब्रिटिश बोर्न बच्ची की उन्हें हालत उसने की है फिर तो स्वामी की बाप बच्चे हैं ओ जी ये तो जाने नहीं या इन्हें किस तरह नहीं ना जाने फिर इस किस्म के वाकयात रखने तो उन्होंने दिल ही नहीं कर 500 पाउंड खलील साहब देने ना 500 पाउंड देने ना तो तुर्की 2 हफ्ते तक जाने ना ऑल इंक्लूसिव 5 स्टार होटल रामे नाल बने उन्हें कोई खतरा नहीं होना सा कोई मारसी कोई खतरा नहीं कोई पौड़सी तो वो उत्थे जाई जिता 500 ने बजाओ 5000 लाई तो मुन तो दिहाड़ी राती नहीं है टेंशन है कि बंदा हॉलीडे पर जाना या रिलैक्स करने तो जाना तो माइंड फ्रेश करना चलो जी मैं फिरने तुरने आया तो जो उत्थे पलियां लाई तभी तो तुसां जाए तो टेंशन नहीं जाओ तो केड़ा बंदा इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड आक्सी के नहीं जान सो ये भी काफ़ी साड़ी कम्युनिटी बहुत बड़ा इशू है काफ़ी मैं कोशिश करना पिया कि घंटे के अंदर मैं जितने डिफरेंट मौजूद में कवर करी सका अच्छा खलील साहब थोड़ा जा मैं जुलना कोविड ने वाले ना कोविड हवाले साड़ी कम्युनिटी की अल्लाह ताला मजीद हिदायत दे आमीन सुमा आमीन मजीद अल्लाह ताला इन्ना की नाल दे साड़ियाँ मावां भैणां जिन्हें सब तो पहले माड़ियां न ठीक है उस तो बाद मैं हमेशा पहले मैं अपने घर तू अपने इशारा करना उस तो बाद फिर दुनिया पर करना आ ठीक है साड़ियाँ मावां भैणां ईद आई इन्ना आख्या कोविड अपनी जगह है तो ईद अपनी जगह है जे को सेल हुई तो इन्हें आख्या अजो अज है दुनिया कल पता नहीं क्यामत आई जासी सुबह पता नहीं कोई चीज़ मिलसी नहीं मिलनी क्या होसी क्या नहीं होना ठीक है ये सारे तुसां भी तकने कि तुसां भी साफत रहो तुसां तलक है चीज़ां तुसां नोट करने हो मैं ना नोट कह के दिहाड़ी राती माड़े बने ही रहने मैं लिखिया भी इसने सारे लोग इन्ना की थोड़ा जा 4 हफ्ते इन्हें की बड़ी तकलीफ हुई सारी कम्यूनिटी की और जी 4 हफ्ते होर अगे बंद हो गया जितना 9000 केस हो गया रोज़ाना एवरेज 9 तो 10,000 केस हो गया 15-20 बंदे फिर शुरू हो गया आस्ता आस्ता न्यू बिल्कुल डेल्टा जो इंडिया तो आया जो बाकी जेडे आए न इन्होंने वाले नाल मैं चाहना तुसां अपनी मीठी जुबान नाल मिठास तो भी माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी रखी हुई है इस मिठास कि तुसां थोड़ा जड़ा ना शेयर करो कि इन्ना की शायद तुसां तो शेयर करने रहने सुबह शाम शेयर करने रहने हो लेकिन आज इस लाइव टीवी पर शेयर करो कि शायद कि थोड़ा जा सारे लोगों की नहीं देखो जी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस ना जी उसकी फॉलो करना जरूरी है पाबंदियां उन्हें लाइयां असानी सेहत वास्ते असानी भलाई वास्ते उन्हें लाइयां अगर वो कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है कि इस गाइडलाइन की फॉलो करो तो उसकी करना ज़रूरी है तो ताकि इस जड़ा कोविड-19 जड़ा ख़तरनाक वायरस है इसने तो अस बची सकां और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग हो सकनी है करो मास्क अगर तुम कि आखने लाओ जिथे ज़्यादा बंदे तुम कट्ठे होने हो जरूर लाओ इतने हुण साड़ी मजबूरी है मास्क लाई तो अस टीवी प्रोग्राम ना करने लेकिन अस जिथे जाना जिथे पब्लिक जाने मास्क लाने करना पैना ये तुस वास्ते है रिक्वेस्ट ही करी रहे हैं कि प्लीज़ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस की फॉलो करो मास्क लाई सकने हो लाओ फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो सकनी है करो तो ये सोचो कि गवर्नमेंट तुसानी भलाई वास्ते करी रही है तुसाने फायदे वास्ते तुसानी फेवर वास्ते करी रही है इन्होंने कवानीन जेडे ने सारे वास्ते नहीं कोई किसी कम्यूनिटी की सिंगल आउट करी ने खाली पाकिस्तानी लाओ या खाली इंडियन या खाली नहीं वो सारे वास्ते उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन सारे वास्ते तो प्लीज़ डू फॉलो तो इंशाल्लाह बेहतरी हो सी चलो 21 जून ना सही हो सकने 19 जुलाई रिव्यू हो तो विद इन कपल ऑफ वीक्स अस बाहर आई जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाए हालात अच्छा थोड़ा जा इस मौजू पर रहने फिर एक थोड़ा जा और मौजू है जिसमें मैं टच करना चाहना वैक्सीन वाले नाल माशाअल्लाह ये टीका पढ़िया वा उस टीके के अंदर कोई पता नहीं क्या है उस टीके के अंदर शायद कोई बच्चा बच्ची भी खतरा नहीं हो सकना ये भी रूमर आए उस टीके के अंदर ये भी रूमर आया कि यू कांट गेट प्रेगनेंट यू नो इट्स वेरी इम्पॉसिबल ए मैं चंद रूमर सोई दसना पे जी आई हर्ड दोस एज वेल अच्छा उस रूमर उस तो बाद ये आए कि ये टीका तुसाने मूवमेंट जितनी तुसानी हो सी इसने विच ऐसी कोई ना चिप टीके विच बाई हुई है कि ये चिप जिथा जिथा तुसा जासो तुसा नाल जासी ए नहीं तुसा की पता जड़ा है तुसा हत्थ ही पौड़िया बटेरा ए गार्ड्स आई है ए गार्ड्स आई है ए तो सारे लोगों की थोड़ी जी मिशक है तुसा पर ज़्यादा अमल कर सके तुसा बड़ी गौर नाल गल्लां सुनी रहे ना अच्छा
दूई गल आई है त्री गल आई है और जी दो अगर टीका लोया ने तो 2 साल तुम सिर्फ जरा ना जीने दे सो उस तो बाद अल्लाह की प्यारे हो जासो इस किस्म ने काफ़ी तकलीफ में चाहना कि तुम इन्ना की इस आवाम की इस खूबसूरत आवाम की सारे खूबसूरत जो व्यूअर्स न इन्ना की ये मैसेज पहुँचाओ कि हथ बन्नी तक जाओ और टीके लवाओ बिल्कुल बिल्कुल लवाओ मैं तो दोए लवाई रहा अच्छा मैं दोए लवाई रहा मेरी वाइफ ही लवाई रही बच्चे छोटे ने क्या कोई नहीं लवाया ठीक है लेकिन असा लवाई रहे और इसने कोई हर्ज नहीं ये मुकम्मल गलत गल है जी 2 साल ना तुसा आया सी ना रूमर उसने तुसा अगर उसने रिसर्च करो उसमें पता लगी जैसी कि दैट वाज जस्ट अ रूमर और मैं हैरान हाँ कि असा ने लोग जो स्पेशली पाकिस्तानी कम्यूनिटी एशियन कम्यूनिटी नेगेटिव गल्लां पर फौरन यकीन करी कि यार थोड़ा हाईलाइट करो कि नेगेटिव फेसबुक पर जेडी चीज लगनी ना नेगेटिव उसकी शेयर करसन इस तरह स्वाब समझी के शेयर करसन व्हाट्सएप पर मैसेज पर भेजसन ऐ जी होई गया पीछे जो होया सी बावे ना बावे हथ है जनाब वो मकनातीस लाना है जी भी लगी है इधर कोई नहीं होई नहीं यू नो उसने क्या निकलिया बावे मुंडे ने थल्ले मकनातीस रखे सी दुआ अच्छा वो मकनातीस एक जिथा पे आवा मकनातीस ने जेड़े टच करना वो उसकी उठा होल्ड करी किन्ना सी बाबा बा इयां नहीं सी करना इयां करी तो भी करी सकना बाबा इयां करी था लेकिन नहीं अच्छा वो पता नहीं कि लोगों की नेगेटिविटी फैलाने ना होना बावे की मैं समझ ही ना सकना उस बावे की इस नेगेटिविटी फैलाने ना फायदा क्या है तुम क्यों रूमर फैलाई रहे हो क्यों गलत अफवाह फैला रहे हो क्या इसकी स्वाब समझ रहे हो एक और जी है जी यहूदियों की साजिश है जी यहूदियों की साजिश क्या है तो देखो ब्रिटेन तुसा की कितनी जी है ना मिलियन डोजेस पाकिस्तान की और गरीब कंट्रीज की दे ही रहा है कल राती G7 समिट सी जी कल नहीं गल है वीकेंड सी अगले 7 कंट्रीज जेडी रिचेस्ट कंट्रीज उन्होंने पूरी दुनिया की मिलियंस ऑफ डोजेस दित्तियां कियां दित्तियां ताकि तुसा लोग इस चीज़ तू बची सको इंसानियत नहीं भलाई वास्ते करी रहे ते ये जेहड़ियां नेगेटिव गल्लां नहीं नचना पो ये अच्छी चीज़ है जी है वैक्सीन तुसा इस है ना जी वैक्सीन एक मौत आई है कुदरती तरफों आई है तो अलग गल है लेकिन जिसमें तुम वैक्सीनेटेड हो जाने और डबल डोज तुसें लगी जानी है अगर बिलफर्ज तुसें करोना हो ही जाना है तो मरने के चांसेस जो ना बहुत घट हो जाने बहुत घट हो जाने इस वास्ते अगर तुसें बुलाई रही है डॉक्टर सर्जरी की तरफों नोटिस आया हॉस्पिटल की तरफों किधरों भी आया कि यू आर ड्यू फॉर वैक्सीनेशन तो प्लीज़ डू गेट वैक्सीन और इस नाल तुसां गुड फील कर सो मैं कई बंदे आने जी वो बुखार चढ़ी जाना हो ही सकना है सब जी बॉडीज होनी ना और रिएक्ट करनी ठीक है लेकिन मिगी कोई रिएक्शन नहीं होया मैं 2 लवाइयां और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हाँ हर इंसान ना अपना जिस्म है कुछ बंदे आने जी और ब्लड क्लाट हो जाए आस्ट्राजेनिका लवासो ना ब्लड क्लाट हो जाए फायदा लवासा यार फायदा मैं अगे एक दोस्त नाल गल होनी सी आना नहीं मैं फायदा लवासा मैं फायदा क्या कोई मुसलमान नहीं जाते नहीं आस्ट्राजेनिका यहूदियां नहीं जाते मैं फायदा मुसलमान नहीं है यार दोए उन्होंने जेडी तुसें की लाने लाए अगर एक तुसें की अगर अफेक्ट करसी कोई बुरा तो दूआ भी कर सकती तो जेडी तुसें नहीं लभनी है जेडी बारी इचनी है पई वो लवाई कि मेरे एक दोस्त सन बड़े चंगे जे तो गए हॉस्पिटल तो वो भी उस इसे परी सन जी अजानिका च जी वो ए नी इसने ब्लड क्लाट हो जाने तो मैं मरी ना जा सक चार वीकां शीकां गए उत्थे अस्पताल भी गए उत्थे फायदा को नहीं सी मुड़ी आए फिर 4-5 वीकों बाद है यार मैं हूँ डरना आ तो मैं जी फिर मैं क्या करा है नहीं जनीका नहीं बुलाया ने मैं लवाई किन्ना अच्छा मैं वो एक मिसाल याद आई मैं भाई अक्लमंद काम आदमी भी वही काम करना आ फौरन करी किन्ना बेवकूफ़ बंदा भी वही काम करती लेकिन वही हज़ार खराबियां तो बाद वो काम करती यार एक डोज देने पे तुसा नहीं बेहतरी वास्ते लवाई किनो वेदर इज एस्ट्राजेनिका और फायदा वट एवर जस्ट गेट इट वैक्सीनेटेड सिंपल इज दैट शायद अल्लाह करे कि तुसानी इस दर्द बड़ी आवाज़ अपील की मत है लोग मन्नी के मन्नी जो मत है अच्छा एक और मौजू एक तो पूरा प्रोग्राम इस मौजू तक चाहिए ना इंशाल्लाह वादा सोना कुदरे अगले चंद हफ्ते महीने जरूर टाइम दिता जासी फिर असा बई दो भरा कोई और मौजू कर सकते लेकिन एक मौजू में समझना काफ़ी इंपोर्टेंट है जरा मैं हाईलाइट करना चाहना और मैं किता भी पिछले दिनों में है सी साड़ी कम्यूनिटी ने लोग काफ़ी आए सन एक्टिव जोड़े है सन मौलवी हजरात भी है सन होर भी है सन ना चन्ने ना रौला नहीं चन्ने ना रौला जड़ा है ना वो साढ़े वास्ते तो बाहर है दौड़ने वास्ते तो बाहर है क्योंकि वो माशाल्लाह वो नहीं सुलझना वो अल्लाह इन्ना की हिदायत ही दा उसने हवाले नाल जी जी लेकिन साड़ी नौजवान जो नस्ल इत्थे इस मुल्क उन्ना की हर तरीके नाल फ्लैक्सीबिलिटी भी मिली हुई फ्रीडम भी मिली हुई एजुकेशन भी मिली हुई अफसोस नाल
मिगी आखना पड़ा कि साड़ी जी एशियन कम्यूनिटी है पर्टिकुलर साड़ी जी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उस इस गल्ला फ़ायदा नहीं उठाई रहे अपने बच्चों की तालीम तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे ठीक है और माँ प्यो की पता भी होना कि असाना बच्चा क्या करी दिया जिस तरह तुसाना बच्चा माड़ा बच्चा है अगर उन्होंने कोई 30-40 हज़ार एवरी तनख्वाह जिस बच्चे नहीं होनी है वो भी अगर कुछ पढ़िया हुआ है तो वरना तो 10-15 तो पर होनी नहीं लेकिन अगर कोई अच्छा पढ़िया हो तो उसने 30-40 हज़ार तनख्वाह वो माँ प्यो की पता होना उसने इतनी तनख्वाह है उस तो इलावा जड़ियाँ हरकतां जड़ा उसना लिबास जड़ा उसना उठन बैन चलान खान पीन वो भी माँ प्यो की पता होना जिस माँ मतलब बच्चे की अपने 9 महीने अपने जन्म दिता उसकी नहीं पता होना जिस प्यो पूरी जिंदगी गर्मी भी सर्दी विच उस बच्चे नाल उठना बहना चलना उस वालिद की नहीं पता होना हमारा बच्चा कितना एक्टिविटीज़ ना पता लगी जाने अगर हूँ तुम 24 घंटे 9 ही रहने जिसले घर रचने तुम चाल डाल तू गुफ्तगू तू बंदे की अंदाज़ा लाई सकना है कि हमारा बच्चा किस किस्म की एक्टिविटी च इन्वॉल्व मैं एक प्रोग्राम किया यकीन करो पिछले कोई 2-2 महीने ने क्या और काफ़ी उसने मिगी फ़ोन आए ना ओ जी क्या जी ये प्रोग्राम करने का क्या मकसद सी उन्होंने लोगों की थोड़ा जा क्योंकि तुसा भी मीडिया ने अंदर हो उन्होंने लोगों की थोड़ा जा मकसद असां ये दसने कि अगर तक तुसा अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हो अपने बच्चों की चाहने को तालीम इतना मुफ्त मिली पी है एजुकेशन मिली है कि उन्होंने अच्छी तो अच्छी तालीम दो लेकिन अगर तुसा की पता है कि तुसा बच्चा गलत लाइन पर है तब बजाय उसकी तुसा दुरुस्त करने था या उसकी तुसा करने हो यकीन करो कि इस मुल्क ने अंदर सारी कम्यूनिटी विच 70-80% ऐसे लोग हैं जी उन्होंने फुल सपोर्ट करने ना बच्चा नहीं कि ठीक है जी सारा बच्चा करना ना क्या हो गया लेकिन जिला कोई अल्लाह ना करे कोई इया हादसा हो जाना या जी प्रॉब्लम हो जानी तो फिर स्ट्रेट अवे पहली गल तुसा उन्होंने जुबान ही सुन सो और तुसा रोज़ सुनने हो रेडियो पर वो क्या आखने ना वो नहीं जी हमारा बच्चा तो नहीं सी फलाने उसकी संगत जड़ा उसकी इस तरह करी संगत करी जड़ी है तो जिला वालिद साहब को नोटां दियां दत्थियां अच्छियां ठीक है इत्थे भी बंगले किन्न होने गड्डियां भी बड़ियां बड़ियां किन्न होनियां मकान भी किन्न होने पजारो भी किन्न होनियां कोठियां भी चनियां और जिला वालदा मोहतरमानियां दोए बाजू सज्जी भी और खब्बी बाजू भी माशाल्लाह अथा तक जुड़े लगे हुए होने ना ठीक है वो लेता है वो आने होने ना द वर्ल्ड इज ओयस्टर द वर्ल्ड इज ओयस्टर इस तरह इंग्लिश इस ओयस्टर असन दुनिया सारे थल्ला है ते जिला अल्लाह ना करना कोई ये जी गल हादसा हो जाना तो उलाने ना जी ये ते माड़ा तो बच्चे जो नेक बच्चा कोई है ही कोई नहीं सी मैं चाहना तुसा इसने पर चंद सारे को 2-3 मिनट रह गए इसने पर तुसा थोड़ी जी तफसील गल करो इसने पर है जी के वालिदैन जिस मौजू पर मैं गल करी तुझे पता है जी 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 इशू इतना सारे अंदर सारी कम्युनिटी के अंदर ये तो एक इन्ना मजाक बनाई गई जोक बनी गई है कि तुसा 15 साल 16-17 साल का बच्चा तको 18 तको जड़ा इस किस्म ने कमिट क्राइम करी दिया सिर्फ ड्रग नहीं ड्रग ने अंदर प्रोस्टिट्यूशन गैम्बलिंग कैसीनो आर्म्ड रॉबरीज नाइफ क्राइम ठीक है इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैं पिछले साल साढ़े जो कमिश्नर ने इलेक्शन पुलिस कमिश्नर सारे को मैं बुलाया इस तो पहले भी मैं जो पिछला कमिश्नर से उसकी भी बुलाया पिछले साल लेकिन मैं सोच पाना कि सारी कम्यूनिटी ने अंदर वो बंदे मिगी खलील साहब रबता किया उन्हें प्लीज़ जितना हो सकना ने तुम इस चीज़ा की दोबारा हाईलाइट करो हर हफ्ते बल्कि इस चीज़ की हाईलाइट करो कि शायद कोई एक बच्चा कोई तुम बचाई सको तो मैं चाहना कि तुम इसने पर 2-3 मिनट के अंदर अंदर इस मौजू पर मैं ये आसा कि वालिदैन की जिम्मेदारी है बच्चा देखो तुसाने सामने पलना अगर बच्चा 10-12 साल की उम्र अगर कोई गलत किस्म की एक्टिविटी पे ही जाना ना तो उसकी सरजनिश करो उसकी रोको उसकी संगत की चेक करो और तालीम वाले पास जोर दो क्योंकि तालीम जितनी ज़्यादा बेहतर हो सी नस्लों वास्ते चंगी है असने बच्चे अगर पढ़ी लिखी जा सन अच्छे जॉब्स उन्हें मिल सन अगू उन्होंने औलाद विचों तालीम मुंतकिल हो सी तो तालीम की जड़े ना इसकी प्रायोरिटी दो ये चीज़ां जड़ियां ने है तुस ना शायद इस इतना बेहतर तुसा करी क्यों तुसा कोल दौलत भी आई जाए लेकिन इट्स नॉट गुड वो बदनामी है एक किस्म की इस दुनिया भी है और आखिरत भी नहीं क्योंकि ड्रग करना ये करना तुसा देखो आखिरत भी चंगी गल नहीं है तुसा कि खुदा ने सामने भी जवाब देना पैसी कम्यूनिटी की जवाब देना पैसी तुसा जिसले फेस कर सो तो एक शर्मिंदगी हो सी इसने बजाय यह है कि तालीम पर जोर दे सो बच्चे पढ़ी लिखी जा सन अच्छी नौकरियाँ हो सन तुसा खुद की फखरिया जरा लोगों की दसो और काबिल फ़ख्र महसूस कर सो कि मेरे बच्चे इतनी तालीम हासिल की थी आज इस सेक्टर से खिदमत दे रहा है बहुत अच्छा मेरा पैगाम ये है कि तालीम पर ज़्यादा जोर दे तो प्लीज़ वॉच योर किड्स एक्टिविटीज़ 2 गल्लां सारी कम्यूनिटी हाले तक नहीं गई खलील साहब ईगो और दूसरा कंपटीशन
हूँ इसने पर मैं एम्फसाइज भी करी सकना लेकिन प्रोड्यूसर साहब तो आने के फोन लाइन भी सारे फ्लैश होने पे और मिनट भी असा को 3 रहने सो मैं चाहना कि ये मौजू थोड़ा जा ये पूरे प्रोग्राम ने मौजू नो एक सवाल मौजू है नहीं लेकिन मैं चाहना कि व्यूअर्स सारे खलील साहब ना इस टाइम ना फ़ायदा उठान इस प्रोग्राम ना उठान जितने भी मैं कोशिश करना इन्हें को सवाल हर मौजू पर पूछी सकूँ चलो कुछ की शायद को फ़ायदा वही एक स्वाब ने तौर पर शायद कोई ज़िंदगी बचाई सका असा ईगो नहीं ख़त्म होनी और सुखी ईगो नहीं ना कि चलो ईगो अगर पहली गल है गुनाह है गलत गल है वैसे नापरस्ती जी लेकिन सारे लोगों की सारी कम्यूनिटी में ये चीज़ खत्म नहीं होनी मैं फलाम माड़े को है मैं बनी गया मैं वो बनी गया पहुँच गया घरों कुछ पाहा ना बाहरों कुछ पाहा ना लेकिन उस बंदे ने उसने इतनी आकर होसी कि उसने अद्धी गर्दन आसमान पर होसी तो जमीन पर अड्डी लाई तो वह बंदा चलने के काबिल होना कि मैं अड्डी जमीन पर मारसा और आवाज़ अड्डी नहीं माड़ी नहीं अच्छनी चाहिए है ये किसने बारे में है दूसरा मैं चाहना तुसा थोड़ा जहा हाईलाइट करो कंपटीशन कि अच्छी कंपटीशन खलील भाई वो नहीं कम्पीट कर ले अच्छी गल्ला नहीं कम्पीट कर ले तो सारा बच्चा पढ़ी गया अगर माड़ा भी होगा पढ़सी तो मैं उसके आसा यार वो अस नहीं नकल करना यार इस बच्चे नहीं नकल करना नो असा नहीं कंपटीशन होनी है दूसरे कम नहीं कि वो इतना करी गया उसको तू आंदा कि पुत्र खलील ने बच्चे किया तू सीधा हुई जा तो डबल करी था उसकी 10 जनाब मिनट सारे को 2 रह गए खलील साहब और मौजू भी बड़े इन डेप्थ मौजू नंदर ईगो तो जी है ना ये कुछ लोग तो बोर्न प्रिविलेज समझने भाई ऐसा मैं फलां फैमिली पैदा हो गया तो माड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा है तो बड़ी ईगो है तो जिसकी जालियत अस दो भरा ने बिल्कुल इग्नोरेंट गल्लां ने गलत गल्लां ने तो वो जी ईगो नहीं होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग हो तुसां सारे इक्वल हो सारे की इस मुल्क च राइट्स भी बराबर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है ये गलत गल है नहीं होना चाहिए ना सब की बराबर ट्रीट करो तो नी इज्जत हो सी रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट तो इस तो बाद जो दूआ तुस आने कंपटीशन जिस तरह तुस खुद ही आख्या कि अगर अच्छी चीज़ ना कंपटीशन है कुछ को अच्छी जॉब है तुसा वास्ते वो रोल मॉडल है तुसानी फैमिली ना या बाहर ना अगर तुसा उसने ताल्लुक न तो उस रोल मॉडल की फॉलो करो तको वो अच्छी जॉब पर है वो अच्छा कमाई रहा है या अच्छा खाई रहा है अच्छे काम उसने तो उसकी एज ए रोल मॉडल फॉलो करो कंपटीशन ना समझो लेकिन है उसने कम्पीट इस लिहाज न करी सकना कि मैं उतनी तालीम हासिल करा तो मैं उस तरह करा लेकिन अगर किसी को दौलत ज़्यादा है और दौलत और नाजायज़ राय नाल हासिल की गई है वैदर ड्रग ने जरिए या कोई और गलत कम ने जरिए तो वो कंपटीशन नहीं होना चाहिए ना उसने तो तुसा जिए हाओ उस पर कनात करो और जिंदगी बेहतरीन तो नहीं हो सी खलील साहब सारे को 1 मिनट रह गया एक सारे को ईमेल भी टेक्स्ट मैसेज है खतीजा ना सिस्टर खतीजा आस्क खलील अबाउट daughters and laws and house relationships my sister I wish I can ask Khalil I've only got 30 seconds कि घरों में सस्सू और नूआना रिलेशनशिप ने हवाले ना खलील साहब ना क्या व्यू है उसने हवाले ना लेकिन हमारे को 30 सेकंड रही कि व्यू ये है कि उन्हें कि तुम अपनी मदर ट्रीट करो वो तुम कि अपनी डॉटर ट्रीट कर सन बेटर रिलेशनशिप हो सी तो जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर सी ए मौजू बड़ा लंबा है ए लंबा मौजू है खत्म होना ही इस मौजू पर फिर कुछ करता हूं व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक Khalil Ahmed Saab a senior journalist and a radio presenter many of you know him by face by name and particular by voice I've known him for many years since childhood a great friend of mine a great brother of mine inshallah it's a pleasure to have you on your Britain thank you Shahzad thank you're you always welcome sir this is your program you're always welcome thank you very much for coming till next time love respect and peace for each and every one of you don't forget to watch a repeat 2 o'clock on Friday repeat show and you can watch us on Facebook and social media and YouTube channel and many other Kanshi TV social media websites look after yourself see you same time same place next Monday 5 p.m. UK time only on Kanshi TV in your Britain see you later bye bye